بول بھی جاتے تو ناز صاحب کہتے ہیں سر شام رکھتے ہیں آپ، تو شام رکھی تو ناز صاحب کہتے ہیں مہمانوں کے نام لکھیں. میں نے لکھنا شروع کر دیا. سعید تاج صاحب صدارت، شبیر بٹ صاحب چیف گیسٹ ابھی اٹھ گئے ہیں اپنے بھائی والے، زاہد صاحب مہمان خصوصی، اختر صاحب ہیں سپرنٹینڈنٹ، ان کا لکھ دیا، اور بھی نام لکھ دیے جو میرے ذہن میں آتے تھے. ویسا صاحبہ کا نام لکھ دیا. تو مجھے کہتے ہیں ان سے پوچھنا ہے. میں نے کہا ان سے نہیں پوچھنا، کارڈ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب سے میرا یہ تعلق بن گیا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں ادب کی آبیاری ہو رہی ہے، وہاں کوئی ذاتی کام نہیں ہے، وہاں کوئی ذاتی بدلائی نہیں ہے. الحمدللہ ہم ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ دوستوں کو عزت دیں، اور عزت بانٹنے سے کئی گنا بڑھ کے آ جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے کو سارے صاحب ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم آسانیاں بانٹیں. آسانیاں کی سب سے یہی طریقہ کہ بیٹھیں، شاعری سنیں، اچھا ادب سنیں، اچھا افسانہ سنیں. تو ابھی نوکدہ کی بات ہو رہی تھی، ہمارے پیچھے دوست آئے ہیں عثمان اشرف صاحب، چھوٹا بھائی ہے. اس کے کالم پڑھیں جو بڑے نوکدر لکھتا ہے، اس کے کالم بڑے نوکدر ہوتے ہیں، ان کی بڑی نوکدر باتیں بھی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا 2 باتیں یہ بھی یہاں پہ کرے گا. عثمان اشرف یہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہے اور باپا میں گریڈ 16 کا افسر بھی ہے. اتنے خوبصورت لوگ، اتنے خوبصورت یہاں پہ چہرے، ساجد شاہ صاحب بیٹھے ہیں، سر سعید تاج صاحب ہمارے مرشد کے مرشد دادا مرشد. تو ویری آنسٹ پریکٹس کے لیے میں نے اتنا تو پڑھا نہیں سلیم مرزا صاحب کو، لیکن یہ مزاح کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کی کچھ گزار کروں گا. کہ ٹائم بھی جو بڑا مورخہ دنیا کا، وہ بھی اس کا جو تعلق تھا وہ مزاح نگاری سے تھا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ بڑی سے بڑی بات جو ہے کسی کو محسوس کروائے بغیر فکشن میں نہیں لکھ سکتے، آپ اسے فلاسفی میں نہیں لکھ سکتے، لیکن ایک چیز جو الاؤ کرتی ہے سوسائٹی ویسٹ میں بھی اور یہاں بھی، وہ مزاح نگاری کر سکتے ہیں. اور بغیر کسی کو محسوس کروائے، کسی کا نام لیے بغیر آپ جتنا تو میں نہیں جملہ مزاح میں کہہ سکتے ہیں اتنا کسی اور چیز میں نہیں کہہ سکتے. تو جس کا یہ مینیم ہے یہ اسی کو سوٹ کرتا ہے. تو ٹھیک صاحب آپ کو بہت شکریہ سر، آپ نے یہاں پر بولنے کا موقع دیا اتنے خوبصورت لوگوں کے ساتھ. بنڈل آف تھینکس سر. بہت شکریہ. اور اب میں چاہوں گا کہ ایوب رضوی صاحب آپ کی تعلیموں میں آئیں اور مرزا صاحب کی کچھ باتیں ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب صدر سید احمد تاج صاحب، مہمان خصوصی جناب مرزا سلیم صاحب اور ان کی مسز ربیہ مرزا صاحبہ جو میری بہن بھی ہیں، مجھے ایک مشکل پیش آ رہی ہے کہ مجھے یہاں کیا کہنا ہے. مرزا صاحب ادب لکھتے ہیں لیکن ادب میں نظر نہیں آتے. مرزا صاحب میرے دوست ہیں لیکن وہ دوستی میں یقین نہیں رکھتے. بڑا میں اپنا دوست سمجھتا ہوں، انہیں پڑھتا بھی ہوں. اپنی طرف سے میری جو ان کی طرف دوستی ہے وہ غالب آتی ہے اور ادب بھی کھلایا جاتا ہے. اس حوالے سے اگر دوستی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ان کا ممدوح ہونا چاہیے، اگر ادب کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ان کا نقاد ہونا چاہیے. چلیے اس بات کو درمیان میں چھوڑتے ہیں. مرزا صاحب مزاح نگاری کرتے ہیں اور میری بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ میرے پاس
जो दूसरों का हजम होता है वो सारे टीले नकीले जू मैन्युफैक्चर कहने वाले, और मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं सब्जेक्ट को छोड़ दूँ, तो मैं इस बात पे बात कर दूँ कि अदब क्या है, मज़ाक क्या है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। साहिबो, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक अपनी माशरती परतों को ही कायम नहीं कर पाए। हमारे यहाँ किसी की भादम डालने को मजाक कहा जाता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारे स्टेज ड्रामों का आ गया, जहाँ पर हम मजाक के नाम पर, जुगतों के नाम पर उसे इस जगह पर ले गए कि शुरफा आदमी उस कुरान को देख ले। और ऐसे ही एक असर हमारी नस्ल में भी मौजूद है, खास तौर पर जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है, जिसका जो जी चाहता है, जब जो जी चाहता है वो कह सकता है, क्योंकि जवाब देने वाला जिस पे वो तंज कर रहा होता है, बल्कि तंज के नाम पर कोई बात कह रहा होता है, वो वहाँ मौजूद नहीं होता। तो साथ ये भी नहीं होता कि वो भी आगे से मोबाइल लेकर बैठा हो और उसका जवाब दे रहा हो। तो हम ज़्यादा इसराह इस बात की है कि हम ये तो तयन कर सकें कि लिखा क्या जाना चाहिए। अफसोस इस पर हमारे पास कोई पैमाना मौजूद नहीं है, हम कोई पैरामीटर मुकर्रर नहीं कर पा रहे कि तयन कहाँ बनेगा, किस जगह हमको रुकना है, कहाँ हम तंज कर रहे हैं, मिजाज कहाँ है, और कहाँ पर हम दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। जैसे वो शायर ने कहा कि तज़हीक को इल्तिफात में आएगा, तज़हीक को इल्तिफात में रहने दे फर्क, तज़हीक को इल्तिफात में रहने दे फर्क, यूं देखे ना मुस्कुरा, हाँ मुस्कुरा के देख। हमारे यहाँ एक और बदकिस्मती है, जो आदमी जिस फील्ड में आता है वो उसमें हजारादार हो जाता है और वो ये समझता है कि सिर्फ उसी का हक है। गिरोहबंदियाँ बनती, और सबसे बड़ी गिरोहबंदियाँ सोसाइटी में अंदर जो नजर आती हैं वो अदीबों में है। अगर उनकी गिरोहबंदी मौजूद नहीं है तो वो तरक्की नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जब आपके पास गिरोहबंदी मौजूद है तो आपने एक दूसरे की तारीफ भी करनी है। अगर तारीफ नहीं करेंगे और दूसरे के लिए अगर आप कहीं रिजल्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप उस गिरोह का हिस्सा नहीं। सही ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अगर आप अदब लिखते हैं तो अदीब के तौर पे लिखिएगा, अदब से मोहब्बत कीजिए, अफराद से नहीं। बिरला साहब चूंकि मेरे साथी कोच हैं और दिखने में तो चलो थोड़ी सी समझ आती है, बोलने में ज़रा मुश्किल आ जाती है सुनना उनके लिए। पहले शुरू में मेरा ख्याल ये था कि मैं ज़ोफ़े समाज का शिकार हूँ और मैंने पूरी तरह सुन नहीं पाता, लेकिन उस शफीक जानी ने एक दिन मुझे बताया कि नहीं यार ये गलती कर, ये ठीक तरीके से मखरज अदा नहीं करते। मिर्जा साहब कटीला देखते हैं, बड़ी जुर्रत से बड़ी बात कर जाते हैं और इन्हें इस बात का खौफ भी नहीं आता कि इस तरह की महफिलों में जहाँ पर मेहमान खुसूसी बना होता है और उसके पास एक आदमी जो माइक लेके खड़ा होता है वो कुछ भी कहने क्या और जब तक उसकी बारी आती है उसके बाद एक और आदमी वो उसकी कहीं भी बात कहीं पीछे रह जाती है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ
کہ ہماری سوسائٹی کو ادب سیکھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا تصوف کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہماری تمام اصناف میں یہی ایک صفت صرف آتی ہے جو آدمی کو ادب پیدا کرینا ہے، محبت کے کریوں میں لے کے آتی ہے۔ اگر آپ مہذب نہیں ہیں، بھلے دکھنا آپ نے کچھ بھی ہو، لیکن آپ کی میل ملاقات تو مہذب ہونی چاہیے۔ اردو زبان جہاں سے آئی وہاں تم کا لفظ تصحیح کے لیے، مخاطب کا لفظ آپ تھا، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، تم کو پکڑ لیا۔ اور یہی ہے کہ ہر ایک بات پہ تم جو کہتا ہے کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ہم تو یہی اٹک گئے، ہم نے وہ تیرا پکڑ کے بنا، ہماری شاعری، ہمارا ادب، اور جب طنز و مزاح کی بات آتی ہے تو اس پہ تو ایک لائسنس مل گیا کہ آپ جس کو جو چاہیں کہہ لیں، جس انداز میں چاہیں کہہ لیں۔ ارے بھائی یہ بڑا نازک کام ہے، مزاح لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ مزاح اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دوسرے آدمی کو گریز نہیں پہنچا اور اپنی بات نہیں کی۔ آپ اگر ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ دوسرے آدمی کی تصحیح کر رہے ہیں، اس سے گریز کیجیے گا۔ میں جاتے جاتے آج میرے بات میں ہو، میں جو غالب نے کہا تھا کہ اختیار ہو تو پوچھوں تجھ سے کیا نہیں، تو نے وہ گنجھائے گرایا کیا۔ صاحبوں اگر میرے بات میں ہو تو میں کہیں ایک اسٹڈی سرکل قائم کروں اور اس میں جو پہلے لوگ میں بنواؤں کلاس کے لیے وہ ادیب اور شاعر ہوں، اور انہیں تصوف کے کسی ماہر آدمی کو بلوا کر ان سے لیکچر کرواؤں کہ ادب کیا ہوتا ہے، ادب لکھا کیسے جاتا ہے۔ کیا بات، شکریہ۔ الحمدللہ ہم نے ایک صوفی بھی یہاں بلایا ہوا ہے اور وہ آج ہمیں بات کریں گے۔ میں میر احمد حقانی صاحب اور خواجہ امجد رٹھور صاحب تشریف لائے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی پروفیسر صاحب سے، زاہد فاروق صاحب سے، ہم 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے میرے گھر۔ تو یہ آج کل پہلے تو مبارک ہو یہ 3 سال کے لیے مانگے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کالج گجرا والا، جن کی یہ کلیپ ہو جائے۔ تو اگلی بار میں یہ کروں گا، ہماری 2-3 گھنٹے آغا صاحب بات ہوئی تو پروفیسر صاحب کا نقطہ جو ہے ایک ہی جگہ پھنسا ہوا تھا، جو آج کا ٹیچر ہے وہ کیا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جو آج کا استاد ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جانا بھی ہے، اور ویسے تو میں نے ان کے بارے میں کافی باتیں کرنی تھی اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی شام کریں گے جلدی، لیکن میں چاہوں گا کہ میں ان کے بارے میں بات مجھے خود آئیں اور بات کریں تو استاد کیا ہونا چاہیے اور استادوں کے استاد سلیم مرزا صاحب کیسے ہونے چاہیے۔ آپ کی تعلیموں میں شبیر بٹ صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمد کہتے ہیں شبیر بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ اہل ادب کی محفل ہے، تو میں تو اس میں بے ادب جو ہے نا وہ آ گیا۔ تو کیوں کہ میرا ایک ساتھ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، میں بھی نیولی انٹر ہوا ہوں ایز اے ڈپٹی ایڈیٹر کالج۔ تو میں اپنا سلیم مرزا صاحب سے یہی میں نے کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح میں نے سنا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میں نے کہا ان کی کامیابی میں سارا ڈرائیور اس کی مشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بڑی ذمہ داری تھی، تو میں نے عتیق صاحب نے مجھے میرا نام لکھا، میں نے ان کو کال کی ہماری کلاس 4 کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، میں ساری اس کا ورک کر رہا ہوں، تو مجھے تقریباً
100 गाज आ गई आपस में। तो मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं ये मेरी अहले अदब लोगों की महफिल छोड़ के जाऊँ। मैं बस थोड़ा सा आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। हमारे मित्रा वाली कॉलेज में शबीर अहमद सिद्दीकी साहब का नाम शायद पंजाबी में सुना हो किसी ने, ठीक है। उनका जो तखल्लस वाला नाम था वो आदर्श सिद्दीकी, पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में। जब वो मेरे प्रिंसिपल बन के आए 99 में, तो उन्होंने एक बुक जो है ना वो लिखी, पाले ठाते पंछी। मैंने पूछा सर ये इसका क्या बैकग्राउंड है, मैं पंजाबी तो जानती नहीं था नाम जो इसका कोई असर था। फिर मैंने उनकी किताब पढ़ी, उसके बाद मैंने फिर उनको प्रमोट किया। फिर उन्होंने बर्फा मारदा सूरज, बर्फा मारदा सूरज वो बुक लिखी। वो मैं ट्रेस कर रहा हूँ कैसे मुझे मिल जाए, शायद मेरे मित्रा वाली कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो वो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में आए, ये इकबाल जवाहर साहब हैं, ये जो प्रिंसिपल थे हमारे, अब वो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। लेकिन उनकी सारी शायरी जो है वो गुम हो गई है, वो बड़े शायर थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको भी ज़रा प्रमोट कीजिएगा। उनके पीछे फैमिली के हालात बड़े ख़राब हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको अपना टीका ऐसा जो है बुक्स जो है ना उनकी दे दूँगा। तो ज़ाहिर साहब ने मेरी इनके साथ पहले इंटरेक्शन के घर में हुई थी। तो मैंने यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज बहुत बड़ा वर्क किया है प्राइवेट कॉलेज में, प्रोजेक्ट सेक्टर में। और शबीर भट्ट साहब माशाल्लाह आ गए हैं, वो जानते हैं कि मैंने जब इन्होंने कॉल किया मैं इनके पास होता था। तो मैं इनके साथ मिल के बड़े अच्छे और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा काम किया मैंने। तो अब अल्लाह ताला ने मुझे उसी का सिला दिया कि मैं 3 साल के लिए रेगुलर हो गया हूँ। तो ये अल्लाह की मेरे ऊपर ग्रेस है, ये अल्लाह का फजल है कि मैं ये अपना। तो मैं एक देहात का रहने वाला हूँ। तो मेरे वाला साहब कहते थे जो चाय पिलाता है ना, जब तक 2 चाय रनर पिलाओ उसको तो उसका एहसान नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये अजीब भाई के मेरे साथ आमद है, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा। मैं बहुत अच्छा आपको एटमॉस्फेयर प्लेसेस दे सकता हूँ। तो जो आपका कर्ज है मेरे ऊपर, जब भी आप चाहें आएँ तो मैं इंशाल्लाह इसको आपका अच्छा प्रोग्राम देना करा के दूँगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मुझे बेअदब का टैपल है। मैं बेअदब हूँ, मेरे शायरी के साथ कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा महसूस किया है कि आपसे मिल के और ऐसे लोगों से इंशाल्लाह मैं इतनी डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ कॉलेज का, इसको इंशाल्लाह पंजाबी को वैसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ। सूफियाना कलाम जो है सूफ़ी एक शायद वर्षा को पता है, वो मैं बाजिद उसको लोग किया हुआ, वो भी अपने कल्चर जो है ना उसको प्रमोट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने कहा जहाँ मेरी ज़रूरत हो। तो मुझे शबीर भट्ट साहब ने कुछ माह पहले कहा था कि राज साहब इसे कॉलेज में रखो मुशायरा। तो पिछले चंद दिनों से मेरी हदीस साहब की बात चल रही है। लाहौर से कुछ शायरों को मैंने कहा हुआ कि आप लोगों ने आना है, और हम इंशाअल्लाह कॉलेज में मुख्तलिफ कॉलेज में एक सिलसिले से मुशायरे और दूसरी ऐसी अदबी या सकाफत तकरीबात जो है ना, शबीर भट्ट साहब पहले हमारे लिए थे क्या कहते हैं खिज़ां में बहार के नवीद, और आप हैं तो सही था। मतलब ये है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। अब ये हमारे नलायकी है कि हम कोई काम ना करें, तो हमें वो काम करना चाहिए। सोसाइटी पहले ही बात हुई कि तभी साहब ने भी कहा और रजी साहब ने सोसाइटी तभी उसके रवैये में शुरू जब अदब परवान चढ़ेगा, जब कानून लतीफ़ा को वो दी जाएगी जगह क्या उसकी है। तो मैं हमारे दोस्त हैं चौधरी शाहिद साहब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और साहिबान का इनका बड़ा तल्लक है। हमने एक महफिल नात लाई शबीर भट्ट साहब चैम्बर में, तो मैंने कहा कि हमें चाहिए बच्चे, कितने बच्चे चाहिए? हाल की सीटें थी 420, मैंने कहा 420, 35 स्कूल आ गए, बच्चे पूरे हो गए, टीचर्स आ गए और बाहर लाइनें लगी हुई हैं, हमारा नाम भी लिख लें, हमारा नाम भी लिख लें। और उसके सबसे जो बड़ी बात मेरे ख्याल से तकरीबन सबसे जो अच्छा काम किया था इन्होंने, इनका मसला था कि जो बच्चा नात पढ़ने आए वो नात ही पढ़े, उससे पहले पूछ लेना कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग स्टेज पर कुछ बहुत चीज़ें पढ़ जाते हैं। तो इनका विजन था कि इनका जो बच्चा नात पढ़ने आए वो नात ही पढ़े। तो इनके लिए बहुत बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा ये खुद आएँ और अपनी बात करें। जी प्रोफेसर साहब ने जाना है जी, ठीक है। सदर महफिल और साहिब शाम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, इंतहाई काबिल एहतराम हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम।
आज इस महफिल में मेरा हाल पतरस बुखारी के उन महफिल और मैं जैसा ही है। मिर्ज़ा साहब से ये दूसरी मुलाकात है और आज की तकरीब के हवाले से मेरे इल्म में कुछ नहीं था। जनाब ताहिर अहमद चौधरी साहब जो साहिबान के सरपरस्त हैं, उन्होंने पकड़ा कि आज एक बड़ी अच्छी महफिल हो रही है, आए चलते हैं तो अच्छा सुनने को मिलेगा और एक ऐसी शख्सियत से तारुफ होगा जो अपना तारुफ खुद है। तो जब मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ तो ये राजा साहब की मोहब्बत है तो उन्होंने स्टेज पे बिठा दिया और अब माइक भी दिलवा दिया। राजा साहब, मैं इतना ही कहूँगा कि आज इस महफिल जो जनाब सलीम मिर्ज़ा साहब के एजाज़ में इनकाद पज़ीर है, मेरी शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। और जब मैंने पहली दफ़ा इसकी ऐड फेसबुक पे देखी तो मैंने ये भी देखा कि एक औरत इम्पावर्ड कैसे हो सकती है, तो वो मुझे रबिया सलीम मिर्ज़ा साहब का वो कमेंट पढ़ने को मिला कि मेरे बगैर ज़रा महफिल करके तो देखें। और फिर उसके बाद रबिया सलीम मिर्ज़ा साहब का नाम बड़ी मुनासिब जगह पर लिखा गया और आज वो स्टेज पे तशरीफ़ रखती हैं और ये बड़े एजाज़ की बात है कि दोनों मियाँ बीवी अदीब भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं इसके हाथों से बाहर चला गया हर लिहाज से, वो हदूद जोग्राफिया ही हो या अदब की हो। राजा साहब, आपने एक बात की थी, उस पर कमेंट करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि हमारे लिए ज़रूरत है कि हम ज़हनी पसमानदगी से निकलें और इसका इजहार अभी चंद दिन पहले हुआ जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब अपनी एक स्पीच दे रहे थे और बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त जब उन्होंने कहा कि 1971 के हवाले से मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, सबने सुनिए, वो 71 में शिकस्त की जिम्मेदारी फौज की नहीं सियासतदानों की थी और ये कहते हुए उन्हें यकीन था कि मेरी सारी की सारी कौम जिनको मैं सरवा रहा हूँ ये ज़हनी पसमानदगी रखती है। क्यों? सबको पता है 1958 से लेके 20 सितंबर 1971 तक सारी की सारी सियासत फौज के पास थी। ऐसे ही सियासी तौर पर फौज लीड कर रही थी मुल्क को, तो जिम्मेदारी सियासतदानों की कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि उन 20 सालों की कारकर्दगी की बुनियाद पे बाजवा साहब ने यह तस्लीम किया कि ये शिकस्त भी हमारे अपने खाते में ही डलनी चाहिए। वो अलग बात है कि कौम को मैं आज भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवा रहा हूँ और किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा। अजीब बात है और मैं ऐसा सेकंड करता हूँ आपकी बात को। हम उस वक्त से पहले कौम शायद नहीं बन सकते जब तक हमारी ज़हनी पसमानदगी दूर नहीं होती। और मैं सलाम पेश करता हूँ सलीम मिर्ज़ा साहब को, रबिया सलीम मिर्ज़ा साहब को, स्टेज पर बैठे हुए सारे दोस्तों को और हाल में मौजूद सारे दोस्तों को कि इस तरह की महाफिल यकीनन हमारी ज़हनी अबियारी के लिए अहम रोल प्ले करती हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब का। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करना है हमने, क्योंकि बाजवा साहब ने खाजा साहब वो काम कर दिया है कि जो किसी ने पहले नहीं किया। उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि फ़ौज यहाँ गलत है, फ़ौज यहाँ गलत है, फ़ौज यहाँ गलत है और वो ये उन्होंने साबित किया अपने कामों से। और अगर किसी के दिल में शक था कि बंगाल क्यों अलग हुआ तो उस पर मोर लगा दिए कि ये इन्हीं की वजह से हुआ था। शायद आज के बच्चे ना जानते हों, लेकिन जब उन्होंने ये बात की है तो बच्चों ने किताबें खोली हैं, गूगल सर्च किया तो पता चल गया है कि तब हुकूमत किसकी थी, बंगाल की अलहदगी तरीक कब चली। बहुत से लोगों को शायद पता ना हो, जब 1965 में इलेक्शन हुए थे तो फातिमा जहां का सिपाही था शेख मुजीब, वो फातिमा जहां का सिपाही था जिसको बाद में हमने गद्दार बना लिया, जैसे ही बना लिया। लेकिन चले वो बात हो गई, लोगों को मौका दे दिया उन्होंने कि फौज पे आप खुली तनकीद हो रही है जो पहले नहीं थी। उनकी कमजोरियाँ सब कह लें या मैं कहता हूँ उनकी मोहब्बत समझ लें हमसे कि उन्होंने मौका दिया कि हम आपको जहाँ जब चाहें अब पकड़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि चौधरी अशरफ मजीद साहब, इनकी भी सलीम साहब से काफ़ी सालों से सलाम हुआ है, लेकिन जो भी इनके मिलने वाले आए हैं किसी ने वो बात नहीं की जो हम सुनने के लिए बैठे हुए थे। वजह ये है कि सलीम साहब ने आखिर में बोलना है। चले आए आपकी तालीम में चौधरी अशरफ मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे सदर और अजीम
साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम अजीम दानश्वर जनाब मिर्ज़ा सलीम साहब के साथ उनके साथ जो शाम मनाई जा रही है, ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज हम इधर मौजूद हैं। जैसा कि दोस्तों ने कहा, आगा शेख साहब ने भी कहा कि ये बाजी अदरीस नाज साहब और अतीक अनवर राजा साहब ले गए हैं कि उन्होंने इतनी इज्जत दी। और जनाब आगा साहब, जिसके पास जो चीज़ होती है वही उसने देनी होती है। वाह वाह। मैं समझता हूँ कि इधर जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, ये शहर की करीम इधर बैठी हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि शहर की तमाम करीम इधर मौजूद है। तो ये एक एक दोस्त जो है हज़ारों की नुमाइंदगी कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आज लाखों का मजमा है। वाह। तो मिर्ज़ा साहब, इनकी शख्सियत के बारे में अयूब रिजवी साहब ने, मैडम नैला भट्ट साहबा ने और तमाम दोस्तों ने, मेयर साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। तो जैसा कि अतीक अनवर राजा साहब ने कहा कि कोई ऐसी बात किसी ने नहीं कही जो मैं सुनना चाहता हूँ, तो मेयर साहब ने कहा कि हम इसलिए नहीं वो बातें की क्योंकि हमने उनको भी तो सुनना है, उनके पास कोई बात रहनी चाहिए। तो मुझे तो सिर्फ आज आपका शुक्रिया ही अदा करना था कि इतने अजीम दोस्त, ये जो दोस्त हैं आगा शेख साहब या मिर्ज़ा सलीम साहब, अतीक अनवर राजा साहब, अदरीस नाज साहब, अल्लाह की कसम हमारा शहर बहुत छोटा है, ये लोग बहुत बड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको जज़ा दे और हमें इस काबिल रखे कि हम अदब के लिए अदब से कोशिश करते रहें। मैं चाहूँगा कि ख्वाजा अमजद राठौर साहब आए हैं, वो 2 मिनट से स्टेज पे हैं। मेरी इनसे इसी हाल में मुलाकात हुई थी वेड़ा प्रोग्राम में, तो इन्होंने बड़ी अदबी बातें की थी। लेकिन 2 मिनट सिर्फ आपकी तालीम में ख्वाजा अमजद राठौर साहब। मेरा भी राजा साहब इतने प्यारे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा बहुत खुश हूँ। मिर्ज़ा साहब हैं, सलीम साहब हैं, मेरे कामरान जिला मकसद है, गुरु खुदा साहब और समाजी कारकुन है, बहुत ही प्यारियां बातें करते हैं। और शादी शुदा भी बड़ा मजा होना है। तो मेरे तो पता जी कि अज कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है, तो मैं इसलिए सारे काम छड़ के आया। बाकी मेरे मेहमान सारे मुझसे बैठे ने, एक सारी बात करेंगे, मैं आपको सवाल करूँगा, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर राणा नवाज साहब ने कुछ अशार लिखे हैं मेहमान हमारे के लिए। डॉक्टर राणा नवाज साहब। कोई बोले ना बोले, लेकिन एक बंदा तो बोलेगा और इसके बाद उनकी बारी है जो उन्हें बोलना है। तख्ती कलम दवात से पहले की बात है, तख्ती कलम दवात से पहले की बात है
یہ عشق کائنات سے پہلے کی بات ہے۔ آج کی جو محفل صاحبان شوق نے سجائی ہے مرزا سلیم صاحب کے نام، تو سلیم صاحب کے نام میں نے چونکہ یہاں ان کا تذکرہ سنا، میرا تعلق دسکا سے ہے اور دا بگ بک سٹور گجرانوالہ کی طرف سے ہے۔ اسی ہنجواں دے کو گھیر کے کتی وتر دل دی قوم، اے بنجر رہی نمانڑی سجن تیری سون، تے اسا مچ مچایا عشق دا ساڈا نسیا ایک ایک لوں، اسی خود نوں بھلے ساملا اسی ہر دم جپیا تو۔ جناب سلیم مرزا صاحب کے نام یہ اشعار، اور یہاں ہمیں جس شخص کی محبت بار بار کھینچ کے لاتی ہے ادریس ناز صاحب ایسی شخصیت ہے کہ وہ شہر و پار کے ہو گئے، اڈیکا رہندیاں مینوں کدی پتا بھی جے کھڑکے میں بوا کھولدا رہنا، یہ گلاں کھوتے ہوئیاں سن اور ایک ہی ہو گیا مینوں وہ آ کے ڈوب بھی جاندا ہے میں کلا بولدا رہنا۔ اور آج کی محفل سے جانے میں ایک بڑا نام جناب رضوان صاحب کا دا بگ بک سٹور کی طرف سے میں یہی کہوں گا کہ پھولوں کی نمائش میں اگر وہ بھی ہوا تو، پھولوں کی نمائش میں اگر وہ بھی ہوا تو ایک بار گلابوں کو بڑی آگ لگے گی۔ اور آج کی محفل جو ہے اس میں ہمارے مہمان جناب شبیر بٹ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے لیے صرف یہی کہ ہم لوگ بھکاری ہیں فقط ایک سخی کے، مانگی نہ کبھی بھیک درے یار سے آگے، ہم اور طرح سے بھی تجھے چاہتے لیکن جذبہ ہی نہیں اور کوئی پیار سے آگے۔ اور یہ سب کے نام ہے آج کی محفل۔ اس محفل کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے، بہت سے احباب ہیں مجھے نام نہیں آتے سب کے، اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے پہروں سوچ بچار کے بعد میں نے اپنا ملبہ بیچا، ہاتھ تو ہاتھوں ہاتھ بکے، پاؤں بھی کوئی لے ہی گیا، آنکھیں میں نے رکھ لی ہیں، یہ میں اس کو بیچوں گا جو تیری گلی میں رہتا۔ انشاءاللہ ان محفلوں میں ہم بار بار آتے رہیں گے۔ اور ہمارے عتیق راجہ صاحب یہ تذکرہ کر رہے تھے اس کا، ہمارے یہاں کے جہاں شاعر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ملاقاتوں کا کہتے ہو ملاقاتیں کہاں ہوں میں، نہ پاوے ہیں مسجد میں نہ ہم جاوے ہیں میں کھانے، ہم بھی محکانے میں جائیں گے آپ بھی آئیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب احباب کا، انشاءاللہ یہ محفل سچتی ہے اور جن کا میں ذکر نہیں کر سکا ان سے معذرت۔ بہت شکریہ جی۔ ہم میخانے بھی جاتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، جو آ رہا تھا ہم ٹی ہاؤس میں بھی جاتے ہیں، اور شبیر بٹ صاحب ہماری کوشش ہے کہ شہر میں ایک ایسا گوشہ ادب بنا دیں جو آنے والی نسلوں کو ادبی محفلوں ہمیں شرکت کا موقع دیتا رہے۔